بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں ہم بستری کیسے ہوگی؟ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ ان نعمتوں میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے زوجین کا ملاپ ہم بستری بھی شامل ہے، لیکن یہ ملاپ دنیاوی شکل و صورت جیسا نہ ہوگا بلکہ بہت اعلیٰ، پاکیزہ اور روحانی جسم کے ساتھ ہوگا۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت کے مطابق جنت میں ہم بستری کی کیفیت کیا ہوگی۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی مثال سے بڑھ کر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3244، صحیح مسلم حدیث 2825۔ لہذا جنت کی ہم بستری بھی دنیاوی ہم بستری سے بہت مختلف اور اعلیٰ ہوگی۔ جنتی مرد اور عورت کی قوت اور جسمانی ساخت۔ جنت میں مومن مردوں کو نہایت خوبصورت اور طاقتور جسم دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جنت میں جماع کی اتنی طاقت دی جائے گی جتنی طاقت 100 مردوں کی ہوتی ہے۔ ترمذی حدیث 2536۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کی جسمانی لذتیں دنیا سے زیادہ طاقت اور تکلیف سے پاک ہوں گی۔ حورین اور ازواجین قرآن میں فرمایا گیا، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ سورۃ البقرہ۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سورۃ الصفات۔ یہ اشارہ ہے کہ مومن مردوں کو حوریں دی جائیں گی اور وہ اپنی دنیاوی بیویوں کے ساتھ بھی ہوں گے، مگر وہ اہل جنت ہوں۔ جماع کی کیفیت ہم بستری۔ جنت میں جماع کے متعلق احادیث میں آیا ہے، نہ منی نکلے گی، نہ گندگی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، صرف لذت، خوشبو اور سکون ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی آدمی جب اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو بغیر منی کے لذت حاصل کرے گا، پھر فوراً دوبارہ تیار ہو جائے گا۔ ابن ماجہ حدیث 4328۔ شرم و حیا کے بغیر پاکیزہ تعلق دنیا میں جنسی تعلق کو شرم یا گناہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جنت میں یہ عمل گناہ نہیں بلکہ انعام ہوگا۔ وہاں نہ شرم ہوگی، نہ حسد، نہ حسرت، نہ فتنہ۔ خواتین کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ عورتیں اگر دنیا میں نیک اعمال کرتی ہیں تو وہ بھی جنت میں ہو جائیں گی، اور اگر ان کا شوہر بھی جنتی ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہوں گی۔ اگر بیوہ یا غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں جنت کے کسی نیک شخص سے شادی دی جائے گی۔ جنت میں انہیں بھی شوہر، محبت، جمال، جوانی اور سکون ملے گا۔ جنت میں ہم بستری دنیا جیسی نہیں بلکہ درد، حیض، تھکن اور شرم سے پاک ہوگی۔ مرد عورت دونوں کو مکمل خوشی اور روحانی لذت حاصل ہوگی۔ وہاں حسد، بے وفائی یا حسرت جیسی کوئی بات نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر بغیر کسی گناہ یا فتنے کے عطا ہوگا۔ تمیز جنت کا تعارف، جنت کا مقصد اور انعامات۔ مومنین کے لیے جنت کی اہمیت۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا ذکر، جنت کی ازواج، پاکیزگی اور لذتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جنتی مردوں کو جماع کے وقت حوروں کا حسن و جمال، جنت کی عورتوں کے بارے میں احادیث۔ جنت میں ہم بستری کی کیفیت، دنیا اور جنت کے فرق۔ جسمانی لذت مگر روحانی پاکیزگی، نہ تھکن، نہ بدبو، نہ حیض۔ جنتی مردوں کی جنتی قوت، حدیث میں بیان کردہ طاقت، ایک لمحے میں بار بار جماع کی طاقت۔ حورین کا تعارف، قرآن کی آیات۔ حور کی صفات، سفید رنگ، بڑی آنکھیں، عفت و حیا۔ جنتی عورتوں کا مقام، دنیا کی عورتوں کا بہتر حوریں، بیویاں شوہروں کے ساتھ۔ عورت کو بھی جسمانی اور روحانی لذت جنتی ہم بستری اور دنیاوی فرق میں نہیں نکلے گی۔ شرم و حیا کا دائرہ نہیں ہوگا۔ محبت، خوشبو اور لذت، جنت کی ازواجی زندگی کا نظام۔ حسد اور غیرت کا خاتمہ، ایک سے زیادہ بیویاں، مکمل انصاف اور خوشی۔ سوالات اور اعتراض کے جوابات۔ کیا یہ شہوت پرستی ہے؟ کیا عورت کو بھی ہم بستری کا حق ہوگا؟ دنیا کے گناہوں سے پاک لذت کیسے؟ اختتام۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، جنتی نعمتوں کی اہمیت، تمیز جنت کی حقیقت اور لذتوں کا تعارف۔ اسلامی تعلیمات میں جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا تصور انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نیک بندوں کے لیے انعام کے طور پر فرمایا، جہاں انہیں ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جس کی ان کے دلوں نے خواہش کی ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ترجمہ: کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہوگی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ سورۃ سجدہ۔ دنیا میں جو لذتیں اور خوشیاں
इंसान को हासिल होती हैं वो सब जन्नत की लत्तों के मुकाबले में माद एक साया हैं। इनमें से एक जिस्मानी ताल्लुकात यानी हम बिस्तरी भी है। हूर जन्नत में एक पकीज़ा और बेमिसाल नेमत के तौर पर अता की जाएगी। कुरान मजीद में जन्नत की अज़वाज और लत्तों का ज़िक्र कुरान करीम ने कई मकामात पर जन्नत की अज़वाज बीवियाँ का ज़िक्र किया है। पकीज़ा बीवियाँ तर्जमा, उनके लिए जन्नत में पकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरत बकरा। तर्जमा, वो हूरें याकूत और मरजान की मानद होंगी। सूरत रहमान। तर्जमा, इन जंतु में नीची निगाह रखने वाली शर्म व हया वाली औरतें होंगी जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने। सूरत रहमान। कुरान की इन आयात से मालूम होता है कि जन्नती बीवियाँ निहायत खूबसूरत, पकीज़ा, शर्म व हया से आरास्ता होंगी और वो सिर्फ़ अपने शोहरों के लिए मखसूस होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जन्नती हम बिस्तरी का ज़िक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का तफसीली ज़िक्र करते हुए फरमाया। हदीस नंबर 1, जन्नत में एक मोमिन को जमा की इतनी ताकत दी जाएगी जितनी ताकत 100 मर्दों को होती है। सुनन तिरमिज़ी 2536। हदीस नंबर 2, जब जन्नती मर्द अपनी बीवियां या हूर के साथ हम बिस्तरी करेगा तो वो फौरी तौर पर दोबारा तैयार हो जाएगा। इब्न माजा 4328। हदीस नंबर 3, जन्नत में न थकन होगी, न गलादत, न पेशाब, न हैज़, न मनी, सिर्फ पाकीज़गी, खुशबू और लज़्ज़त होगी। सही मुस्लिम। यह हदीस वाज़ेह करती है कि जन्नत में जिनसी ताल्लुक़ एक आला, ताकतवर और खुशगवार तजर्बा होगा जिसमें किसी किस्म की दुनियावी तकलीफ़ या शर्मिंदगी नहीं होगी। जन्नती मर्दों की जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत, जन्नत में मर्दों को जो क़ुव्वत दी जाएगी वो न सिर्फ जिनसी ताकत में बल्कि हुस्न, जवानी और सीहत में भी बेमिसाल होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, जन्नती मर्दों की उम्र 33 साल होगी, कद आदम अलैहिस्सलाम की तरह होगा और हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा। जमा की सलीयत, एक लम्हे में बार बार हम बिस्तरी की ताकत, लज़्ज़त के साथ रूहानी सकून, न थकन, न बीमारी, नापाकी। हुरल-ऐन की सिफ़ात। हुरल-ऐन जन्नत की वो मखलूक है जो ख़ास तौर पर मोमिनों के लिए पैदा की गई है। हूर की सिफ़ात, सफ़ेद रंग, गुलाबी और नाजुक जल्द, बड़ी बड़ी आँखें, शर्म व हया की मलका, हुस्न व जमाल की इंतहा। तर्जमा, हमने उन्हें ख़ास पैदा किया है और उन्हें कुंवारी बनाया, प्यार करने वाली और हम उम्र। सूरत वाक़िया। जन्नत की औरतें दुनिया की नेक बीवियों का मकाम। ये ख्याल गलत है कि सिर्फ़ हूरें होंगी। जो औरतें दुनिया में नेक होंगी उसे भी जन्नत के इनामत मिलेंगे, बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक वो हूरों से भी अफजल होंगी। हदीस, दुनिया की नेक बीवियाँ जन्नत की हूरों से अफजल होगी। अगर औरत जन्नती होगी और उसका शौहर भी तो वो दोनों जन्नत में इकट्ठे होंगे। जन्नत में हम बिस्तरी की कैफियत, दुनिया की हम बिस्तरी, थकन, हैज़, नापाकी, शर्म व हया, गुनाह का ख़दशा, जिस्मानी वक्ती लज़्ज़त। जन्नत की हम बिस्तरी, अब्दी जवानी और ताकत, लज़्ज़त, सुकून का इम्तरा, कोई नापाकी नहीं, ना हैज़, ना मनी का अखराज, शर्म और तकलीफ़ से पाक। मोमिन जन्नत में बग़ैर मनी का जमा करेगा, सिर्फ़ खुशबू और लज़्ज़त हासिल करेगा। इब्न क़य्यम। जन्नती अज़वाजी ज़िंदगी का निज़ाम, मर्द को कई बीवियाँ मिलेंगी। एक मोमिन को जन्नत में 72 हूरें दी जाएंगी। अगर उसकी दुनियावी बीवी भी जन्नती हुई तो वो भी साथ होगी। न हसद होगा न गैरत होगी, बीवियाँ आपस में हसद नहीं करेंगी, हर खुश और मुतमईन होगी। अल्लाह ताला हर दिल में रज़ा, मोहब्बत और सुकून डाल देगा। एतराज़ात और शुबहात के जवाबात, क्या ये शहवत परस्ती है? नहीं, जन्नत की ये लतें अल्लाह का इनाम है। जब रब ने ख़ुद वादा फरमाया तो ये नापाकी नहीं बल्कि पकीज़ा नेमत है। क्या औरत को भी हम बिस्तरी की लज़्ज़त मिलेगी? जी हाँ, औरत भी मुकम्मल लज़्ज़त, हुस्न और सुकून हासिल होगा। वो दुनिया की थकन, हैज़, बुढ़ापे से पाक होगी। क्या जन्नत में हया का दायरा ख़त्म होगा? जन्नत में शर्म हया का तसव्वुर दुनिया जैसा नहीं। वहाँ हर अमल पकीज़गी पर मबनी होगा, कोई फाशी या नापाकी नहीं होगी। जन्नत में दाखिले का रास्ता, नेक अमाल करें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वालिदैन की खिदमत, ज़बान, निगाह और दिल की पाकीज़गी, बुराइयों से बचें, ज़िना, फाशी, ग़ीबत, जुल्म, झूठ, हसद, अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखें, अल्लाह की नेमतों पर
शुक्र, जन्नत की नेमतें इंसान की अक्ल से बालातर हैं और इनमें हम बिस्तरी जैसी पाकीज़ा लज़्ज़त भी शामिल है। ये किसी फाशी का उन्वान नहीं बल्कि रब का इनाम है जो सिर्फ़ उसी को मिलेगा जो दुनिया में नेकी के रास्ते पर चला। इस्लाम में हम बिस्तरी जमा को एक ख़ास फितरी जायज़ और बैस सवाब अमल करार दिया गया है, बशर्ते कि ये शरीयत के आदाब और हदूद के अंदर हो। कुरान और हदीस में इसकी कई आदाब और दुआएं बयान की गई हैं जिन पर अमल करने से ये अमल भी इबादत बन जाता है। हम बिस्तरी के ज़रिए सिर्फ नफ्स की तस्कीन ना हो बल्कि नीयत ये हो कि ज़ौजैन के तल्लुक़ में मोहब्बत बढ़े, औलाद हासिल हो, नफ्स को हराम से बचाया जाए। हदीस, मोमिन जब अपनी बीवी से जमा करता है तो उसे भी सदका का सवाब मिलता है। सही मुस्लिम 1,6। हम बिस्तरी से पहले दुआ पढ़ना। तजम्मा, अल्लाह के नाम के साथ, आय अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो अल्लाह तू हमें अता फरमा उसे भी शैतान से दूर रख। सही बुखारी 141। अगर इस दुआ के साथ हम बिस्तरी की जाए तो पैदा होने वाली औलाद को शैतान नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर्दे का ख्याल रखना, बीवी से ताल्लुक़ करते वक्त पर्दे का लिहाज रखना ज़रूरी है। मुकम्मल नंगा होकर मुबाशरत करना मकरूह है। कम अज़ कम एक कपड़ा जिस्म पर होना बहुत बेहतर है। कुरान या हदीस की बात ना करना, जमा के वक्त कुरान पढ़ना, ज़िक्र बुलंद आवाज़ से करना या शरई गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। ये वक्त मखसूस है ताल्लुक़ और मोहब्बत के इजहार के लिए। हम बिस्तरी में तनो यानी मुख्तलिफ़ अंदाज़। कुरान में इजाज़त है कि तर्जमा, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ, इनके पास जैसे चाहो आओ। सूरत बकरा 223। मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ अंदाज़ पोजीशन से जमा जायज़ है जब तक कि फ़र्ज यानी अगली शर्मगाह के ज़रिए हो। पीछे से जमा हराम है। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल का हुक्म। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है चाहे इंज़ाल हो या ना हो। हदीस, जब शर्मगाहें आपस में मिलें गुस्ल वाजिब हो गया, खा इंज़ाल हो या ना हो। सही मुस्लिम 349। गुस्ल के बग़ैर नमाज जायज़ नहीं। कुरान छूना हराम। मस्जिद में जाना मना। मुबाशरात के बाद सोना हो तो वज़ू कर लेना बेहतर है। अगर मुकम्मल गुस्ल मुमकिन ना हो कम अज़ कम वज़ू करके सोना चाहिए। हदीस, अगर कोई शख्स गुस्ल ना करे तो कम अज़ कम वज़ू कर ले जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। सही बुखारी 288। बीवी के साथ नरमी, मोहब्बत और पेश कदमी। इस्लाम सिर्फ जमा पर जोर नहीं देता बल्कि बीवी के जज्बात, खुशी और रग़बत का भी ख्याल रखता है। औरत की तैयारी, ज़हनी हालत और जज्बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। हदीस, तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ जानवर की तरह ना हो बल्कि पहले उसके साथ खेल करे, प्यार करे। औरत की इजाज़त व आमादगी, बीवी को मजबूर करना, इसकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़बरदस्ती करना इस्लाम में नापसंदीदा है। औरत का भी हक़ है कि वह लज़्ज़त पाए और खुश हो। जमा का वक्त व हालात, दिन हो या रात जब दोनों तैयार हों मगर वो नाजायज़ रोज़े की हालत में, दिन में हैज़, माहवारी या नफास, विलादत के बाद खून में। कुरान और हैज़ में औरतों से अलग रहो जब तक पाक ना हो जाए। इनके करीब ना जाओ। सूरत बकरा 222। राजदारी और शर्म, हम बिस्तरी के बाद इसका तज़किरा दूसरों से करना हराम और गुनाह कबीरा है। हदीस, क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो बीवी से मुबाशरत करे फिर उसका राज फाश करे। सही मुस्लिम 1437। औरत का हक़ जमा, औरत का भी हक़ है कि उसकी जिनसी ज़रूरत पूरी की जाए। मर्द को चाहिए कि तवील गैर हाज़िरी या बेरग़बत रवैया ना अपनाए। हदीस नबवी का शोहर पर यह हक़ है कि वो जब चाहे उसे छोड़े ना। इब्न माजा। औलाद की नियत से हम बिस्तरी करना, मियाँ बीवी औलाद की नियत से जमा करें तो ये अमल इबादत बन जाता है। दुआ करें कि नेक औलाद पैदा हो। हम बिस्तरी के बाद की दुआ, अगर इंज़ाल हुआ हो या लज़्ज़त हासिल हुई हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम बिस्तरी के इस्लामी आदाब, नीयत की पाकीज़गी, लज़्ज़त के साथ इबादत बनाना। नंबर 2, दुआ पढ़ना, शैतान के शर से बचाओ। नंबर 3, पर्दे का ख्याल, शर्म और हया का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 4, गुस्ल फ़र्ज़, पाकीज़गी का तकाज़ा। नंबर 5, वज़ू नींद से पहले मुस्तहब। नंबर 6, बीवी के जज्बात का ख्याल, सुन्नत और हुस्न मुआशरात। नंबर 7, राजदारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद। नंबर 8, हैज़ में इज्तनाब, कुरानी हुक्म। नंबर 9, मुख्तलिफ़ अंदाज़ जायज़ है जब तक कि हदूद शरीयत में हो। नंबर 10, औरत का हक़, मर्द की ज़िम्मेदारी। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक और बुलंदगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर में फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से
کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔